اور سب سے پہلے آپ کو جشن آزادی مبارک کہیں گے۔ مہنور، آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو۔ گورنر ہاؤس میں بھی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آج شام عاطف اسلم گورنر ہاؤس میں آواز کا جادو جگانے جا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں جشن کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، وہاں سید زبیر راشد موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ زبیر، سب سے پہلے تو آپ کو آزادی کا جشن بہت بہت مبارک ہو۔ ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ 7 بجے پروگرام کا آغاز ہونا تھا، 7:16 ہو گئے ہیں، کب تک شروع ہو جائے گا؟ موسیٰ، آپ کو بھی جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد، اور پورے ہمارے اہلیان کراچی اور سٹی 21 کو سب کو جو ہے جشن آزادی کی بہت مبارکباد۔ موسیٰ، جیسے کہ آپ نے سوال کیا، گورنر ہاؤس میں یقیناً شہر قائد کا سب سے بڑی تقریب جو ہے جشن آزادی کی مناسبت سے آج یہاں پر منعقد کی گئی ہے، اور یقیناً 7 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر جو تیاریاں ہیں یقیناً وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ اسکیجول کے حوالے سے تھوڑا بہت میں آپ کو بتا دوں کہ 8 بجے کے قریب جو ہے معروف اولمپئن ارشد ندیم جو ہے گورنر ہاؤس کراچی میں جو ہے تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر عاطف اسلم کے کانسرٹ کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو عاطف اسلم کا جو کانسرٹ ہے 9 بجے کے بعد جو ہے عاطف اسلم کا کانسرٹ جو ہے یہاں پر شروع ہوگا۔ تیاریاں یقیناً یہاں پر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، اور گورنر ہاؤس میں سب سیلالی پرچموں کی بہار ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کی جانب سے 77ویں یوم آزادی کے حوالے سے شہر قائد کے باسیوں کو گورنر سندھ کی جانب سے یہ تحفہ دیا گیا ہے، اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو یقیناً شہریوں کا ایک سمندر ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے، اور بدستور شہر قائد کی جو باسی ہیں، منچلے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے بدستور یہاں پر جاری و ساری ہے، اور یہاں پر شہری جو ہے یہاں پر یقیناً گورنر سندھ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 14 اگست کے پرمسرت موقع پر گورنر سندھ کی جانب سے یہ جو تحفہ دیا گیا ہے تو یقیناً انتہائی خوش آئند جو ہے وہ اقدام یہاں پر اٹھایا گیا ہے۔ بدر ایکسپو سولوشن کا اشتراک جو ہے آج کے اس ایونٹ میں شامل ہے، جبکہ گورنر سندھ نے گزشتہ روز بھی جو ہے یہاں پر شاندار آتش بازی کا ان کی جانب سے یہاں پر مظاہرہ کیا گیا، اور 14 اگست کا سب کو ہی انتظار تھا، اور یہاں پر ہم اگر بات کریں تو شہری جو ہے کافی حد تک یہاں پر ایکسائٹڈ ہیں، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے معروف گلوکار کو یہاں پر سننے آئے ہیں، اور عاطف اسلم نہ کہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا میں یقیناً ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بہت بڑا نام ہے، اور گلوکاری کے شعبے میں ان کا بے شمار جو یقیناً ان کی خدمات ہیں، اور یہاں پر بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم کو سننے کے لیے شرکا جو ہے کافی پرعزم ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ میرے کیمرہ مین وقاص لودھی اگر آپ کو تھوڑا بہت کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکے کہ یہاں پر شہر قائد کے باسی جو ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے سے، اگر آپ کو اندازہ ہو اسکرین کو دیکھ کر اگر آپ کو اندازہ ہو تو یہاں پر سب ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ شہری جو ہے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ یہاں پر جو ہے معروف گلوکار عاطف اسلم کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بڑے اور کہہ سکتے ہیں کہ بچے جو ہے سب یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہر ایک جو ہے انتہائی خوش دکھائی دیتا ہے۔ میرے کیمرہ مین تھوڑا بہت آپ کو دکھائے کہ لوگوں کے چہروں پر یہاں پر خوشی جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹھاٹے مارتا ایک شہریوں کا سمندر جو ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے، اور گورنر سندھ نے فری آف کاسٹ یہاں پر انٹری رکھی تھی عاطف اسلم کو سننے کے لیے۔ شرکا جو ہے بیتاب ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ایک تو اگست کا پرمسرت موقع، دوسرا عاطف اسلم کی آواز کو سننے کے لیے، تو یقیناً ہر ایک کا دل جو ہے یہاں پر باغ باغ ہوا ہے۔ شہری جو ہے گیٹ نمبر 1 گیٹ نمبر 4 سے جو ہے یقیناً ان کی آمد کا سلسلہ بدستور یہاں پر جاری و ساری ہے، اور مرکزی اچھا زبیر، اگر عاطف اسلم نامہ ختم ہو گیا ہو تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ زبیر عموماً اوکیزن کے حوالے سے ڈریسنگ کرتے ہیں، لیکن آج سیاہ رنگ میں ملبوس ہیں، کیا وجہ ہے؟ آزادی کی خوشی نہیں ہے سید زبیر راشد کو؟ بھائی بالکل آزادی کی بالکل خوشی ہو، اور میرے پاس ہمارے ادارے کی جانب سے جو بیچ دیا گیا میں نے وہ بھی لگایا ہوا ہے، لیکن تھوڑا موقع کی مناسبت سے بھی ہونا چاہیے نا موسیٰ۔ آپ عاطف اسلم جو ہے اس کی ذرا میچنگ کے حوالے سے تھوڑی بہت ذرا ڈریسنگ کرنی تھی، تو یقیناً کانسرٹ ہوتا ہے تو کانسرٹ میں اس طرح کی ڈریسنگ تو بنتی ہے، اور اگر ڈریسنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو کل میں نے اپنی ڈریسنگ کا شوق بالکل پورا کر لیا، لیکن یقیناً جشن آزادی جو ہے ہم سب جو ہے بڑے پرتپاک طریقے اس کو بنا رہے ہیں، اور
और इसका बहुत अहम एहतराम भी करते हैं। और 14 अगस्त है, इसके अलावा सिटी न्यूज़ नेटवर्क को भी यकीनन हमारे जो है 6 साल जो है मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम काफ़ी हद तक एक्साइटेड हैं और यहाँ पर जो है जितने भी कह सकते हैं कि हम समेत जितने भी लोग हैं यहाँ पर बहुत खुश हैं। और 14 अगस्त का पुरमसरत दिन जो है बड़े अच्छे तरीके से, बड़े खुशाइन तरीके से, बड़ी तफरी के साथ, बड़े हंसी मजाक के साथ जो है यहाँ पर गुजार रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी 14 अगस्त का जो पुरमसरत दिन है स्टूडियो में बैठ के बड़े अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम बड़े अच्छे तरीके से स्टूडियो में मना रहे हैं और बड़ी खुशी हुई है जानकर कि हमारे नुमाइंदगान की पहुंच इतनी आगे तक पहुंच गई है कि उन्हें आने वाले वक्त में आतिफ असलम के ड्रेस कोड का भी पता है। अभी बताइएगा कि क्या चल रहा है गवर्नर हाउस में, जुबैर कितनी गहमा गहमी है? गहमा गहमी मूसा यहाँ पर उरूज पर है और यहाँ पर शहरी जो हैं बहुत एक्साइटेड हमें दिखाई देते हैं। आपको ये शहरी जो हैं यहाँ पर बड़े सब्र तहम्मुल के साथ यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा बहुत अगर आपको और भी यहाँ पर दिखा सके कि यहाँ पर ठाटे मारता समंदर शहरियों का यहाँ पर मौजूद है। हर एक यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है 14 अगस्त के पुरमसरत दिन को अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ना कि सिर्फ ये आवाम जो कि अभी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही होगी, बल्कि इसके अहाते की जंग एक बाउंड्री खींची हुई है। उस बाउंड्री के पीछे जो है मुख्तलिफ मकामात पर 10 से ज़ायद छोटी स्क्रीन जो है वो लगाई गई हैं, क्योंकि आज यहाँ पर लाखों की तादाद में शहरियों की आमद जो है वो मुतवक्के है। और शहरी जो है बदस्तूर अभी भी शहरी जो है उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है, वो सारी है। और एंट्री के हवाले से बात की जाए तो एंट्री पे भी शहरियों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। गेट नंबर 4 से, गेट नंबर 1 से और जो कह सकते हैं जो आईटी गेट है वहां से भी शहरी जो है गवर्नर हाउस के अंदर आ रहे हैं। दूसरी जानिब भी आप देखें तो यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर खासा एंजॉय कर रहे हैं। और गुलकार आतिफ असलम जो है आज अपने फन का मुजाहरा करेंगे, असुरों को बिखेरेंगे। इसके अलावा ना कि सिर्फ आतिफ असलम की खुशी है बल्कि मारूफ ओलंपियन अरशद नदीम जो हैं वो भी आज यहाँ पर आएंगे और शुरा से यहाँ पर खिताब करेंगे। शहर कायद का उनका पहला विजिट होगा ओलंपिक गेम को जीतने के बाद। तो कराची के वासी कहते हैं कि आज यहाँ पर जिस तकरीब का इनेकाद किया गया है तो ये शहर कायद की सबसे बड़ी तकरीब है और कराची के जो लोग हैं खासा इसको एंजॉय कर रहे हैं और हर एक के चेहरे पर खुशी जो है हमें देखने को नजर आती है। 14 अगस्त का दिन है, कराची के वासी इसको खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरा सिटी 21 भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। हमारा न्यूज़ नेटवर्क हर लम्हा बाखबर जो है शहरियों को रखा हुआ है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको गवर्नर हाउस के अंदर के मनाजिर बराह रास्त यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अरशद नदीम के हवाले से बात की जाए तो थोड़ी देर में ओलंपियन अरशद नदीम जो है गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की दावत पर गवर्नर हाउस में तशरीफ लाएंगे और गवर्नर सिंध के साथ जो है यहाँ के शुरा से खिताब करेंगे। जी सैयद जुबैर राशिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जश्न आज़ादी का मौका खसूसी अफराद भी किसी से कम नहीं, खुद एतमादी और खुद मुख्तारी के जज्बे से शर्मसार होकर अपनी मसनूआत के स्टॉल सजा डालें। बात करने के लिए राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर डिसेबल एसोसिएशन वेलफेयर की जानिब से मासूर अफराद के अंदर खुद एतमादी, हिम्मत और जरूरत को बढ़ाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है जहां पर मासूर अफराद भी मुआशरे के आम फर्द की तरह ना कि सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं और उस तरह से बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार आगे कमा सकते हैं कि जो डिसेबल अफराद हैं वो किसी तौर अपनी सलाहियतों में किसी से कम नहीं। अगर इनको भी मौके दिए जाएँ तो ये भी एक आम शहरी की तरह बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी ज़िंदगी गुलजार बन जाए सभी की। ठीक है राहिल, आपने हमें अपडेट किया। अभी तक जुबैर हमारे साथ ही मौजूद हैं गवर्नर हाउस से। मानूर, आपकी कैसी गुजरी आज़ादी के दिन? अगर देखा जाए तो सिंपल सी गुजरी है, इतना कुछ खास नहीं किया। जी बिल्कुल, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब कुछ खास करने को रह भी नहीं गया। आज़ादी का दिन भी वैसे बच्चे ही मनाते हैं। जुबैर से पूछ लेते हैं कि उनका आज़ादी का दिन कैसा गुजरा। शाम तो हमारे साथ है, बताइएगा जुबैर, आपका आज़ादी का दिन कैसा गुजरा? बाजे बजाते रहे हैं आप या फिर सुकून के साथ जश्न आज़ादी मनाया? साथ साथ ये भी बताइएगा कि आतिफ असलम आ रहे हैं, ये सबको पता चल गया है, और कौन आ रहा है?
बिल्कुल अरशद नदीम भी आ रहे हैं, आतिफ असलम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि 14 अगस्त का दिन सिर्फ बच्चे मनाते हैं, बड़े भी मनाते हैं, और मैं भी इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से मना रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी स्टूडियो से जब बाहर निकलेंगे तो आप भी जो है इस दिन को अच्छे तरीके से मनाएंगे। और अगर आतिफ असलम के अलावा अगर बात की जाए तो अरशद नदीम यहाँ पर आएंगे, इसके अलावा कुछ सियासी लोग जो है वो भी यहाँ पर, उनकी आमद भी जो है यहाँ पर मुतवक्के है। हमें बताया जा रहा है कि फारूक सत्तार साहब जो है वो भी यहाँ पर आएंगे, इसके अलावा MKM के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि काफ़ी सारे सियासतदानों की कुछ फैमिलीज जो है वो भी यहाँ पर आतिफ असलम को सुनने के लिए, अरशद नदीम को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो गवर्नर हाउस में इस वक्त के ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हर एक बहुत एक्साइटेड है, और सब तिलाली परचमों की तो यकीनन यहाँ पर बहार है, और गुलकार आतिफ असलम के सुरों का एक कह सकते हैं कि एक अंदाज हो और उनकी आवाज़ हो, तो यकीनन यहाँ पर जितने भी शिरका हैं खूब लुत्फ़अंदोज़ होने को तैयार हैं। बहुत एक्साइटेड है, हर एक अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है, कोई मिली नगमा पढ़ रहा है, कोई कौमी तराना जो है वो पढ़ रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ बैठ के जो है इस खूबसूरत से मंजर को, गवर्नर हाउस के एतराफ में जो स्क्रीनिंग की गई है उस मंजर को अपने कैमरे की आंख में अक्स बंद कर रहा है। तो हर एक यहाँ पर बहुत खुश है, और यकीनन क्यों ना कहा जाए, जैसे कि शहर कायद के वासियों ने कहा, यहाँ पर मौजूद शुरका ने कहा कि कराची का सबसे बड़ी तकरीब, जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब जो है गवर्नर हाउस में सजाई गई है। और गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर आवाम का एक ठाटे मारता समंदर जो है यहाँ पर मौजूद था, और यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा यहाँ पर किया गया था, और यहाँ पर बिल्कुल आज़ादी की शाम है और गवर्नर हाउस में इस वक्त लोगों का हुजूम हमें नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब बात करें, जश्न आज़ादी के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद सी-वे पर पहुंच गई है। सी-वे पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलें, जश्न आज़ादी के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद सी-वे पर पहुंच गई है, और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि सी-वे पर इस वक्त बड़ी तादाद में शहर कायद के वासी मौजूद हैं, और जब भी कोई ओकेजन आता है तो हम शहर कायद के वासी हमेशा सी-वे पहुँच जाते हैं। ईद हो, बकरा ईद हो, आज़ादी हो, न्यू ईयर नाइट हो, हम रुख करते हैं सी-वे का, क्योंकि सबसे बड़ी तफरीह और सबसे अच्छी तफरीह सी-वे ही है। और गवर्नर हाउस में हम अभी आज़ादी का जश्न जारी है, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ुबैर, ये बताइएगा कि बड़ा चर्चा रहा कल से कि 1 रुपये में हर फूड मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, और ये जो स्कीम है और ये ऑफ़र आज भी अवेलेबल है या नहीं? नहीं मूसा, देखें वो 1 रुपये वाली जो स्टॉल्स थे वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ कल के लिए थी, लेकिन आज सिर्फ यहाँ पर सुरों का एक तोहफा जो है गवर्नर सिंध की जानिब से दिया गया है। आज यहाँ पर शहरियों को खाली पेट ही घर वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर खाने के लिए कोई स्टॉल्स यहाँ पर खुसूसी यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जहाँ पर सुरों का ताल जो कि यहाँ पर बिखेरा जाएगा, तो यकीनन मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पर शहरी जो है आप भूख को थोड़ा बहुत महसूस करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसानी पेट है, खाना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉल जो है वो कल ज़रूर लगाए गए थे, और गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंह की जानिब से 1 रुपये में गोलगप्पे और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और दीगर अशिया जो है फरोख्त की जा रही थी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है कॉन्सर्ट का खुसूसी एहतमाम किया गया है, और यहाँ पर मिली नगमे जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर मरकजी जो स्क्रीन है वहाँ पर पाकिस्तान की कह सकते हैं खूबसूरत जो दिलकश मकामात है उसकी अक्कासी की जा रही है, उसके मनाजिर जो हैं स्क्रीन पर पेश की जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पीछे आवाम का एक समंदर जो है यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर शहरी जो हैं आप देख सकते हैं कि सब हिलाली परचमों की बहार है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। शहरी जो हैं अपनी जगह से जो है उठ गए हैं, और यहाँ पर झंडे जो हैं फिजा में लहराए जा रहे हैं। 14 अगस्त के पुरमसरत मौके को शहरी जो हैं यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा दिलकश मंजर जो है आज हमें देखने को नजर आता है कि शहर कायद के बासी यकजा होकर ईमान, इत्तेहाद,
के साथ जो है एक का मुजाहरा यहाँ पर कर रहे हैं और शहरी जो है यहाँ पर हाथों में पाकिस्तान का झंडा थामे यहाँ पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने अपने मोबाइल फोन की जो फ्लैश लाइटें हैं वो भी यहाँ पर जो है उसको जला लिया है। तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत से मंजर जो है हमें देखने को नजर आता है। गवर्नर हाउस कराची जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है, सब हलाली परचमों की यहाँ पर बहार है और कराची के बासी इस पुरमसरत मौके को, इस पुरमसरत आज के इस दिन को पुरतफाक तरीके से जश्न के साथ जो है यहाँ पर मना रहे हैं। ठीक है जुबैर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे हम बाद में बात करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताएं, रहनुमा ANP शाहिद सैयद मीडिया से पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी पर डिप्टी मेयर कराची का सिटी 21 का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। 16 बरस मुकम्मल होने पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम को मुबारकबाद भी दी। शुएब मुख्तार उनके साथ मौजूद हैं, जानते हैं मजीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी नहायत जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त सिटी न्यूज़ नेटवर्क में भी देखा जा सकता है कितना जोशो खरोश है यहाँ पर मुलाजमीन में, रिपोर्टर्स में, कैमरामैन में। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी आज जो है सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया है और 16वीं सालगिरह पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क को मुबारकबाद भी पेश की है। उनकी जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है केक भी काटा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? आज के इस मौके पर सबसे पहले तो मैं 14 अगस्त की जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आएँ इस मौके पर ऐद करें कि एक कौम बनकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में साथ बटाएँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 16वीं सालगिरह है, इस पर क्या कहते हैं? इस मौके पर सिटी न्यूज़ की 16वीं सालगिरह के मौके पर मैं यहाँ के इंतज़ामिया को, रिपोर्टरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा कराची की आवाज़ बनकर कराची के इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और उनकी मेहनत से कराची की तामीर और तरक्की को भी बेहतर तरीके से पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पूरी इंतज़ामिया को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क अपना काम जो है इंतहाई ईमानदारी के साथ अंजाम देता है, बहादुरी के साथ अंजाम देता है, ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करता है। उम्मीद है कि 16 बरस जिस तरह सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा किया, आइंदा भी इस रिवायत को जो है बरकरार रखेगा। इनका ये कहना है कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए बल्दिया-उज़्मा कराची हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में जो है इस शहर को मज़ीद बेहतर जो है करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। जी, जश्न आज़ादी का मौका है और शहरियों की बड़ी तादाद CVU पर पहुंची हुई है। CVU पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। जश्न आज़ादी के मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद CVU पर पहुंच गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा शहरियों की कितनी तादाद ने वहाँ पे शिरकत की है? जी बिल्कुल, आज जश्न आज़ादी जो है वो कौमी जोश जज्बे के साथ जो है वो कौम मना रही है। मेन पॉइंट है कराची में लुत्फ़अंदोज़ होने का सी वॉल, जहाँ पर जो है शहर भर से, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान भर से आए हुए जो शहरी थे, कराची में रिहाइश पजीर थे, वो तमाम जो है वो अपनी खुशियाँ मनाने सी वॉल पे पहुँचे हैं। CVU पर वो मुख्तलिफ मिली नगमे कौमी तरानों के साथ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो सुबह से ही जो CVU का रुख कर रहे हैं और इस वक्त भी जो है वो देखा जा रहा है कि अतराफ़ में मुकम्मल तौर पे जो मेन शाहराएँ हैं CVU आने वाली, वो तमाम जो हैं वो ब्लॉक है। कई किलोमीटर हद निगाह जो है वो ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन, DHA का अमला भी जो है वो सड़कों पर मौजूद है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पे जो है तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी किस्म की इस मौके पर बदमज़गी जो है वो रिकॉर्ड ना की जाए। कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ को जो है वो जाने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि दीगर मकामात पर जो है वो मनचले नौजवान जो है वो आ रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मिली नगमे चला रहे, कौमी तराने चला रहे, झंडे जो है परचम पाकिस्तान के जो है वो हाथ में थामे हुए हैं, गाड़ियाँ सजाई हुई हैं, मोटरसाइकिलें सजाई हुई हैं और अपने अपने अंदाज में जो है वो 77वीं पाकिस्तान की सालगिरह को जो है वो मना रहे हैं। जी बिल्कुल, शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी।
احسن عباسی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ احسن یہ بتائیے گا کہ سی وی پر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں کیونکہ ہلڑ بازی کا بھی وہاں پہ خدشہ ہوتا ہے اور دیگر معاملات بھی ذرا خراب ہو جاتے ہیں نوجوانوں کی طرف سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں بالکل سیکیورٹی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے بالکل دیکھا جا رہا ہے کہ غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں شہری جو ہیں وہ سی ویو کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر امیوزمنٹ پارک جو ہیں وہاں پہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے۔ مزار قائد کے اطراف میں وی آئی پی موومنٹ ختم ہونے کے بعد شام میں جو ہے وہ شہریوں کے لیے جو ہے وہ داخلہ کھول دیا جاتا ہے، تو مزار قائد کے اطراف میں بھی بے شمار تعداد میں جو ہے وہ شہری پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر جو تفریح گاہیں ہیں وہاں پہ بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن سی ویو پہ دیکھا جائے تو سی ویو پہ پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی فورس بھی جو ہے وہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ جی بالکل کوئی خوشگوار رونما نہ ہو سکے کوئی واقعہ، اس لیے وہاں پر سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ احسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وطن سے محبت کا منفرد انداز، ماہی گیروں نے کھلے سمندر میں جشن آزادی بوٹ ریلی نکالی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کاوش میمن ہمیں رپورٹ کر رہے تھے۔ بالکل دیکھیں جشن آزادی ہر کوئی اپنے انداز میں منا رہا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلے سمندر میں بوٹ ریلی نکالی گئی ہے۔ اس وقت ہم سمندر میں موجود ہیں، یہاں پر ماہی گیروں کی جانب سے یہ بوٹ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں اس میں ماہی گیر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایم پی اے جو ہے وہ میرے ساتھ آصف خان بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آصف صاحب بتائیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہوں سب بھرپور انداز میں 14 اگست منا رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ اس مرتبہ اگست کا مہینہ ہمارے لیے بہت خوشیاں لے کے آیا ہے۔ ایک تو اولمپئن جو ہمارے ارشد بھائی ہیں، انہوں نے گولڈ میڈل لے کے آئے، اس کی وجہ سے قوم پوری ایک پیج پہ آ گئی، ایک جذبہ ایک ولولہ پیدا ہوا پوری پاکستانی قوم میں۔ اور اسی دوران 14 اگست کا دن بھی قریب آ گیا، اور آج پورے پاکستان میں جہاں 14 اگست کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہیں پہ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے یہ لانچیں جا رہی ہے، اور سمندر کے درمیان ماہی گیر ہر سال ماہی گیر یہاں پہ ریلی نکالتے ہیں 14 اگست پہ۔ آج بھی 14 اگست کا دن یہاں پہ ہم سمندر کے بیچ میں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان نیوی کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ گیٹ وے ٹو پاکستان، جہاں سے پاکستان سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، پاکستان ہے تو ہم ہے۔ بالکل دیکھیں ہمارے ساتھ ماہی گیر حسن علی بھٹی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حسن صاحب، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا تو پیشہ ہے یہ سمندر کی موجوں سے کھیلنا اور تمام چیزیں، کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے موقع پر؟ ہم بڑے خوش ہیں اور ہم یہ ہر سال یہ اپنا کشتی کی ریلی نکالتے ہیں۔ اس مرتبہ ہماری جو کافی پریشانی میں ہمارے دن گزرے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ دن رات ہمارے ماہی گیر برادری سمندر کا سینہ چیر کر وطن عزیز کے لیے کثیر زر مبادلہ کما کر لاتی ہے۔ بالکل دیکھیں ایک مثبت پیغام دیا گیا اس ریلی کی صورت میں، اور کہا جا رہا ہے کہ جشن آزادی کی جو خوشیاں ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماہی گیر ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اس کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایم پی آصف خان بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جی، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں۔ مورل پارک کورنگی میں شہریوں کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کامران مناز سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو ہے جشن آزادی ہے پاکستان ہے، اور کراچی کے شہری جو ہے ان میں بہت زیادہ جوش و خروش ہے۔ مختلف مقامات پر جو ہے کیک کاٹنے کا جو سلسلہ جاری ہے۔ یہ ماڈل پارک ہے کورنگی 34-2.5 نمبر، یہاں پر بھی جو ہے شہریوں کی جانب سے جو ہے یہاں پر کیک کاٹا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے کیک کاٹا جائے گا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جشن آزادی منانے کے لیے جو ہے پرجوش ہیں لوگ۔ یہاں پر جو ہے تفریح کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد کے جو ہے نعرے یہاں پر لگ رہے ہیں، اور لوگ جو ان میں جو ہے بہت زیادہ جوش و خروش ہے۔ میں ذرا بات بھی کرتا ہوں شہریوں سے۔ سر، کیا کہیں گے اس جشن آزادی کے حوالے سے، اور اس طرح سے آپ نے یہاں پر کیک کاٹ رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، کورنگی کی شہریوں کی جانب سے یہ جو جشن آزادی کے موقع پہ کیک کاٹا گیا ہے کورنگی کے فیملی پارک میں، اور عوام کا جو ہے لوگ یہاں بہت سارے موجود ہیں اور یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں لوگ، اور یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ شہریوں کی طرف سے کیک کاٹا گیا ہے،
पाकिस्तान की तामीर तरक्की इंशाल्लाह जारी रहेगी, क्या समझ? इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, देखें कि शहरी जो है पुरअज़्म है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, इसके जो भी दुश्मन हैं वो इंशाल्लाह इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और इसी तरह से जो है पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए काम करते रहेंगे और इसी तरह से हर जश्न आज़ादी को जो है सेलिब्रेट करते रहेंगे। JDC के तहत IT कोर्सेज की तकरीबात तकसीम असनाद। तकरीब खसूसी जश्न आज़ादी के मौका पर मुनक़िद की गई। 7000 से ज़ायद तलबा को असनाद तकसीम की गई। अब से कुछ देर कबल नमरा रियासत हमें अपडेट कर रही थी। बिल्कुल जी, आज़ादी के जश्न के मौका पर ही तकरीब असनाद का इनेकाद किया गया है, जिसमें JDC में पास आउट होने वाले जो तलबा हैं जिन्होंने IT कोर्सेज किए हैं उनके लिए जो है वो तकरीब मुनक़िद की गई है इस मौका पर, और उनको असनाद तकसीम की गई हैं और कैश प्राइज़ भी दिए गए। मज़ीद हम जानते हैं ज़फ़र अब्बास के जो छोटे भाई हमारे हमरा ओन अब्बास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितने तलबा ने पास आउट किया। बताइएगा कौन कौन से कोर्सेज थे, कितने माह के थे और कितने तलबा ने पास आउट? देखिए, इस वक्त ये हमारा छठा बैच यहाँ पे चल रहा है। आज जो तकरीब थी वो हमारे 5वें बैच के पास आउट होने की तकरीब थी। हमारे हर बैच में 10,200 से लेकर 10,500 स्टूडेंट्स होते हैं। इस वक्त तक JDC फ्री ITC से सिटी से 50,000 बच्चे जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने कोर्सेज की बात की, यहाँ पे अमेज़ॉन, eBay, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स के वो कोर्सेज़ के जिनके ज़रिए स्टूडेंट सीख के घर बैठ के हज़ारों और सैकड़ों डॉलर कमा सकते हैं, वो कोर्सेज़ यहाँ कराए जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि अभी आपने तकरीब में भी देखा कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद थी। ऐसे लोग ख़ास करके ख़वातीन कि जिन्होंने यहाँ पे कोर्सेज़ किए और अब वो माहाना जो है वो 500 से 600 डॉलर कमा रही हैं और अपना ख़र्चा जो है निकाल लेंगे और अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही हैं। ये सिलसिला यहाँ पे जारी है। JDC फ्री IT सिटी में W फॉर वेंसडे का जो दिन है वो वुमेंस के लिए मुख्तस है। यहाँ पे ख़वातीनी क्लास होती हैं। इसके अलावा पूरे हफ्ते जो है वो इंक्लूडिंग सैटरडे संडे जो है वो सुबह से लेकर रात तक लड़कों की क्लासें होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ ये कोर्सेज़ कराए जाते हैं और वो इन कोर्सेज़ के ज़रिए अपना जो है ज़रिए माश कमा रहे हैं। यकीनी तौर पर के ज़रिए माश बन गया और सक्सेस स्टोरीज़ भी सुनाई गई, दिखाई गई। वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं या जिनके हमरा बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं और कोर्सेज़ कर रही हैं। हमने यहाँ पे ख़वातीन को देखा है जो भी सर्टिफिकेट लेने के लिए आई हैं अपने बच्चों के हमरा, और इसके साथ साथ न सिर्फ ख़वातीन और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी दिन भी मख्तस किया गया है जिसमें उनके लिए जो है वो क्लासेस करवाई जा रही है। और उसके अलावा लड़कों की जो क्लासेस हैं वो पूरा हफ्ता जो है वो चल रही हैं, सुबह से शाम तक मुख्तलिफ कोर्सेज़ की क्लासेस चल रही हैं, जो कि अब छठा बैच शुरू हो चुका है, जिसमें 5वें बैच की जो है वो आज तकरीब तकसीम असनाद थी। जी, यौम आज़ादी के मौका पर सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में तकरीब का इनेकाद किया गया। चर्च में इबादत के बाद परचम कुशाई भी की गई। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में पुरवकार तकरीब। यौम आज़ादी की मुनासबत से सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में तकरीब का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी ने इबादत के बाद चर्च में परचम कुशाई की और साथ ही 77वें यौम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा। यौम आज़ादी की खुशी में चर्च के फादर मारियू बोले, मसीही बरादरी की जानिब से पूरी कौम को 77वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। आज सुबह हमने 7 बजे में हमारी इबादत हुई है, उसके बाद 8 बजे परचम कुशाई केक काटने की रस्म, और जैसे आप देख रहे हैं कि एक मेला का सामान लगा हुआ है, लोगों को मिठाइयाँ बांटा गया, और फिर इसके बाद जो मेडल्स और सर्टिफिकेट्स जो हमारे रिसेंटली समर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया वो कंक्लूड हो गया, तो उसमें सर्टिफिकेट्स और मेडल्स बांटा जाएगा और पूरे दिन यही समा रहेंगे। कौमी लिबास ज़ेब तन किए मसीह बरादरी का हर फर्द खुश दिखाई दिया कि हम इस दफ़ा 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे अक़लियती बरादरी के लिए जो है ये बड़ा ख़ास और बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अक़लियती बरादरी भी उस वक्त तमाम अक्सरियत बरादरी के साथ थी, और मिलजुल कर हमने इस नेशन को बनाया है, इस कौम को बनाया। यौम आज़ादी के हवाले से जहाँ मुल्क भर में तकरीबात मनाई जा रही हैं, वहीं अक़लियती बरादरी की जानिब से भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।